Hello, good morning student. Student, in yesterday period we have learned about the introducing account, yes, which is related to effect of electric current. Actually, we have learned there some pictures and related to that picture we have tried to understand about the effects of the electric current. Electric current play the important role in human life. Just we have used the electric current for different kind of the purposes and we have complete our necessary needs. But when we have used the electric current, that time we have get their different effects, and these different effects showing electric gadgets device we have learned in that pictures, and we have tried to understand about the effect of electric current. But today we are going to learn about these effects, different kind of the effect, how we have get it. Actually अभी इसी को लेकर हम यहाँ पे अभी लर्न करेंगे. So today's point we have learned here, actually this is related to, that is energy transfer in electric current. Energy transfer in electric current. And for studying this small unit, we have carry here one simple experimental activity. And in that simple experimental activity, we have collect the some our requirement. Yes, which is requirement here. We have required here some connecting wires, resistance, plug key, battery, milliammeter, voltmeter, just such requirements we have collected, and after their collections we have tried to do arrangement the circuit. ठीक है, and we have learned here, yes, that's today's point, that is energy transfer in electric current. Energy transfer in electric current. तो देखिए एक इलेक्ट्रिक करंट क्या बेटा, एक एनर्जी है, एज लाइक वन एनर्जी. ठीक है, तो इसी को लेकर हम अभी डिटेल्स लर्न करेंगे. सो लेट अस वी हैव स्टार्ट. यस, वी हैव टेक आवर फर्स्ट स्लाइड. स्टूडेंट, आई हैव already arranged this circuit diagram. Yes, this is shown in this slide. Just okay, we have collect some our requirements for our learning today's unit, that's energy transfer in an electric circuit. And actually these collected all material. ठीक है, we have arranged it, and such arrangement I have do it. Just okay, and such arrangement is already given in this slide. देखिए बेटा, I have explained this arrangement again. So देखिए बेटा, ये एरो दिख रहा है, माउस एरो. सो दिस इज आवर रेजिस्टेंस R. रेजिस्टेंस R, ठीक है. अब इस रेजिस्टेंस को देखिए बेटा, जो टर्मिनल्स मिलते हैं जैसे A और B, these are the two ends. These are the two ends of this resistance, and these two ends we have connect. देखिए बेटा, into this series, हमने इस series में उसे कनेक्ट किया है. Actually, the connections we have started. देखिए बेटा, this resistance to terminal we have connect to the batteries terminal. देखिए बेटा, ऊपर वाला जो A terminal we have connect to the batteries positive, B terminal connects to the batteries negative. Again we have plugged the key into the circuit. देखिए यहाँ पे plug key I have connected into that circuit. Again I have connect the voltmeter. देखिए I have connect the voltmeter. देखिए एरो दिख रहा है बेटा, connected the voltmeter. Yes, parallel to the resistance.
पैरेलल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दो टर्मिनल्स के बीच में जो बनने वाला पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव मेजर इट, एंड फॉर द मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव कनेक्ट द voltmeter parallel to the resistance, parallel to the resistance. Again we have passed the electric current by using the battery, and such passing current I, yes, for its measurement we have connect the milliammeter in a series, milliammeter in a series into this circuit. चलिए बेटा, and I have completed this arrangement, I have completed the circuit here. But remember one point, when we have do the arrangement of the circuit, yes, we plug out the key, we must plug out the key, and after the completion of the all circuit arrangement, yes, okay, make it sure, ठीक है, and after the completion of the surety, circuit become already connected and just correct. That time we have, when we have tried to do the activity, that's what I have observing to that experimental activity, that time we have plug the key and do the observation there and their readings also. Especially which observations we have read here, observe here, means the that is a current passing through that circuit, we have measured it by the milliammeter, takes their readings, how many currents pass through that circuit, yes, in form of ampere. Ampere is the unit of the current, and actually measure the potential difference in between two terminals. Okay, we have measured by the using the voltmeter, their reading also we have read it and take their reading into the observation table, ठीक है, and how the changes we have get it, yes, and these changes we have observe thoroughly in detail and take their readings, yes, which are necessary for our experimental purpose. Yes, what is the our aspect or the aim of this experiment? That is to study the, yes, energy transfer in an electric current. Energy transfer, actually देखिए बेटा, energy transfer in an electric current, electric current और energy, इसको हम यहाँ पे देखिए बेटा, इसको कोऑर्डिनेट करते हुए यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, एक लर्न करना है इसका रिलेशन, जैसे एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो देखिए एनर्जी, एक्चुअली जो एनर्जी होता है, जैसे वर्क डन और एनर्जी हमने 9th में देखा था, जैसे कभी भी जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, ट्रांसफर, दे शो द डिस्प्लेसमेंट देयर, एंड दैट टाइम दे डू द वर्क देयर, that time they do the work there, and such works perform, yes, from transferring from one point to the another point, that time they do the, देखिए बेटा, they require some energy, जैसे वर्क होता है तो एनर्जी होती है, तो एक्चुअली जो एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में ये इसका जो रिलेशन है, यहाँ पे हमें एक मैथमेटिकली इक्वेशन डिराइव करते हुए यहाँ पे लर्न करना है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे हमें हीट इफेक्ट मिलता है, तो देखते हैं बेटा हम यहाँ पे हमें ये रिलेशन कैसे लर्न करने के लिए मिलता है। तो सर्किट को हमने अरेंज किया, देखिए बेटा सर्किट को एक बार हमें जैसे कि नोटबुक पे देखिए बेटा इसको ट्राई कीजिए, वी हैव ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, वी हैव ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड वी हैव ट्राई टू 2 to 3 times, just okay, and learn this circuit diagram, how we have, yes, get the connect there, how we have make the connections there, यहाँ पे हमने कनेक्शन कैसे बनाया है, कनेक्शन में जैसे स्पेशली, यस, मिलीमीटर कहाँ पे कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर कहाँ पे कनेक्ट किया है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल्स स्पेशली कैसे कनेक्ट करते समय उसका हमने कहाँ पे ध्यान लिया है। चलिए बेटा, जैसे कि यहाँ पे मिलीमीटर जैसे कनेक्ट करते तो मिलीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यस इज कनेक्ट टू द बैटरीज पॉजिटिव, मिलीमीटर निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट्स टू द बैटरीज निगेटिव, वोल्ट मीटर जैसे कनेक्ट करते तो वोल्ट मीटर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट्स टू बैटरीज पॉजिटिव, वोल्ट मीटर निगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट्स टू बैटरीज निगेटिव स्पेशली,
and voltmeter when you are arranged that time it's arranged parallel to the resistance है ना बेटा, and millimeter we have arranged in a series into the circuit. स्पेशली हमें यहाँ ऐसे कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आफ्टर देन वी हैव यूज आवर ब्रेन पावर, यस, एंड ट्राई टू just learns this relationship, that's energy transfer in an electric current. तो देखिए बेटा इसका हमें एक डेरिवेशन स्मॉल सा मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे लर्न करना है। तो एक्चुअली वी नोन, देखिए बेटा ऑलरेडी लर्न्स इन नाइन्थ, यस, इफ द इन द सर्किट, कोई भी जो सर्किट होता है, तो अभी तो हमने यहाँ पे सर्किट अरेंज किया है, अभी सर्किट अरेंज करते तो बेटा तो सर्किट में क्या करना है हमें, एक्चुअली द रेजिस्टर्स, यहाँ पे जो रेजिस्टर दिखाई दे रहा है वो इंडिकेटेड एज आर, यस ओके। इंस्टेड ऑफ आर अभी हमने रेजिस्टर यूज किया है, लेकिन रेजिस्टर के अलावा यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, वी हैव कनेक्ट द मोटर, यस ओके। रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय मोटर एंड इन विच फॉर्म विल द एनर्जी गिवन बाय द सेल गेट ट्रांसफर्ड इनटू, तो इसका ट्रांसफर क्या होगा, इसका ट्रांसफर क्या होता है। चलिए जैसे मोटार यूज करते तो देखिए बेटा पावर आता है, रेजिस्टर यूज करते तो रेजिस्टर में हमें हीट मिलती थी, है ना। और जैसे कि यहाँ पे अभी मोटार यूज कर रहे इंस्टेड ऑफ रेजिस्टर, यस मिस्टर रेजिस्टर वी हैव रिप्लेस एंड इंस्टेड ऑफ रेजिस्टर वी हैव कनेक्ट द मोटार। अभी यहाँ पे हमें मोटार कनेक्ट करनी है, और जैसे ही मोटार कनेक्ट करेंगे, मोटर के दो टर्मिनल्स यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट होने के बाद क्या मिलेगा बेटा, जैसे हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पावर मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा, पावर। चलिए तो इलेक्ट्रिक पावर को लेकर जैसे हम पावर जो एक कंसेप्ट लेते हैं, तो पावर जैसे हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलता है जो कि हमने यहाँ पे 9th में लर्न किया था, जैसे यहाँ पे एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर, है ना। जैसे देखिए बेटा हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे एक छोटा बच्चा है या 7th क्लास या 8th क्लास में, और दूसरे एक उनके साथ जैसे टीचर है बड़े वाले, यस, जैसे कि यहाँ पे 45 के ऊपर के एज के टीचर है, और दोनों भी क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ स्टेयर, जैसे कि 120 स्टेयर है, और वो उनको क्या करने बेटा, जैसे वो ऑक्यूपाई करने हैं, उनको चढ़ने हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ पे कौन वो स्टेयर कंप्लीट करेगा बेटा, दैट्स छोटा बच्चा, है ना बेटा। तो एक्चुअली छोटा बच्चा ये स्टेयर कंप्लीट, जैसे कि वो पूरी तरह से वो क्या करता है बेटा, झट से वो कम समय में वो पूरा काम वर्क डन वो कर पाता है। जैसे दोनों भी वर्क डन करते हैं, टीचर भी 120 स्टेयर के चलकर एट दैट पॉइंट चलते हैं, स्टूडेंट भी वो स्टेयरकेस पूरे 120 स्टेयरकेस चढ़कर वहां एट दैट पॉइंट वो पहुंचता है बेटा। लेकिन दोनों भी काम करते हैं, लेकिन काम करने में देखिए बेटा, जैसे सबसे कम समय किसने लिया है बेटा, छोटे बच्चे ने, स्टूडेंट ने लिया है। तो स्टूडेंट का जो पावर है यहाँ पे क्या है बेटा, ज्यादा है कंपेरेटिव टू द जैसे कि एल्डर टीचर, है ना बेटा। तो सच लाइक दैट, सो इन दिस वे यहाँ पे हमने मोटार कनेक्ट किए, तो मोटार हमें यहाँ पे पावर देती है, तो पावर जनरेट करती है, तो पावर क्या होता है बेटा, दैट इज एनर्जी दैट इज डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम मिलता है। कम समय में, जितना कम समय होता है उतना ही पावर क्या होगा, ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। ऐसे एग्जाम्पल हमने 9th में लर्न किए थे, है ना। एक टेम्पल पे जाना हो तो जैसे 3 बच्चे थे, है ना। पहला बच्चा जैसे कि साइकिल से चल रहा था, दूसरा बच्चा यहाँ पे जैसे कि वो मोटर, जैसे कि यहाँ पे उसके पास कार थी, और तीसरा बच्चा जैसे कि यहाँ पे चलते हुए चल रहा था। तो देखिए बेटा वो मंदिर को वहां पे तीनों को ही पहुंचना है, तो सबसे पहले आसानी से वहां पे कौन पहुंचेगा बेटा, जैसे कि कार वाला, फिर साइकिल वाला, फिर यहाँ पे चलते जो चल रहा है पाँव से चलने वाला जो बच्चा है वो सबसे लास्ट में यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को लेकर हमें यहाँ पे क्या लर्न करने के लिए मिल रहा है बेटा, जैसे कि कम समय में जैसे काम हम पूरा करते हैं तो उसकी पावर क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। ऐसे एग्जांपल्स हमने अपने 9th क्लास में ऑलरेडी लर्न किए थे, याद कीजिए बेटा उसे। तो इसी को लेकर अभी लेकिन हम यहाँ पे किसको लेकर लर्न करने जा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट को लेकर। जैसे इलेक्ट्रिक करंट भी जैसे सर्किट में जैसे पास होता है,
व्हेन वी हैव प्लग द की, व्हेन वी हैव प्लग द की, देखिए हम यहाँ पे की में जैसे कि सर्किट में प्लग की ऑन कर देंगे, और जैसे ही सर्किट में प्लग की ऑन की जाती है तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू पाथ होता है ना बेटा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं थ्रू दैट वायर, थ्रू दैट कंडक्टर, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो देखिए बेटा यहाँ पे वर्क मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते समय देखिए बेटा ये वर्क जैसे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं बेटा, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, है ना बेटा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इन बोथ टर्मिनल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज अ वी ए बी। वी क्या बेटा यहाँ पे ए बी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जैसे कि ए से लेकर बी तक चल रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वो यहाँ पे हमने लिख दिया, दिखाई देता है बेटा एरो, दैट इज अ वी ए बी इंटू क्यू। जितना चार्ज यहाँ पे सप्लाई किया है, अप्लाई किया है हमने, दैट्स क्यू इज चार्ज, दैट इज कूलम से हम उसको क्या करते हैं बेटा, कंसिडराइज कर लेते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे वी ए बी इंटू क्यू अपॉन टी, है ना। जैसे कि यहाँ पे कुछ तो समय लगेगा, वो लगने वाला समय यहाँ पे हमने लिया है, तो इसका मतलब क्या था बेटा, दैट इज वी ए बी इंटू आई मिलेगा, क्योंकि हमें पता है क्यू अपॉन आई इज, क्यू अपॉन टी इज नथिंग बट आई, ये ऑलरेडी 9th में लर्न किया था, क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू द आई, देखिए इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए बेटा जैसे हम यहाँ पे अभी देखिए रेजिस्टर्स यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हीट बनेगी, तो हीट और पावर देखिए बेटा इनका जो रिलेशन मिलता है, जैसे H इज इक्वल टू P, जब रेजिस्टर्स यूज किया था तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती थी, और जैसे हमने मोटर कनेक्ट की तो यहाँ पे हमें पावर जनरेट होती हुई दिखाई देती है। तो H इज इक्वल टू P, एक्चुअली देखिए बेटा H इज इक्वल टू P इंटू टी मिलेगा, H इज इक्वल टू P इंटू टी मिलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो रिलेशन है जैसे कि वी ए बी इंटू आई इंटू टी, जैसे ऐसा इक्वेशन ये बन जाएगा। तो देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर मिलेगा, ध्यान दीजिए बेटा वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। चलिए तो देखते बेटा एच इज इक्वल टू क्या मिलता है बेटा, दैट इज अ वी स्क्वायर ए बी इंटू टी अपॉन आई आर, टी अपॉन आई आर। देखिए बेटा पेज के ऊपर यहाँ पे करके देखना है, मैं यहाँ पे लिखना है बेटा ये। देखिए बेटा अगेन सिमिलरली एच इज इक्वल टू आई इंटू आई इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू क्या मतलब बेटा इसका, जैसे कि आई स्क्वायर आर टी मिलेगा, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इज कॉल्ड एज अ जूल्स लॉ ऑफ हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीट, हीट को लेकर। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो P इज इक्वल टू वी इंटू ए बी मिलेगा इंटू आई, इसका मतलब होता है बेटा जैसे हम इसका यूनिट लिखते हैं, V का यूनिट दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अ वोल्ट, करंट दैट इज आई, इसका यूनिट होता है एम्पियर। तो जैसे 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर यस इज नथिंग बट 1 जूल अपॉन 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलता है बेटा, जैसे कूलम कूलम गेट 1 कूलम गेट निग्लेक्टेड हियर, तो यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर कौन मिलते हैं बेटा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 वैट। ध्यान दीजिए बेटा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 वैट। सो देखिए बेटा इसी को लेकर हम यहाँ पे क्या लर्न कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक जो पावर होता है तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट यहाँ पे हमें वैट मिलता है। यस व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज अ वैट, वैट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो देखिए बेटा तो हमें यहाँ पे यूनिट भी मिला है, जैसे किसका यूनिट है बेटा यहाँ पे, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। तो देखिए बेटा ये हमें यहाँ पे जूल्स लॉ को लेकर, जैसे जूल्स लॉ भी यहाँ पे लर्न करने के लिए मिल रहा है, जैसे हीट इफेक्ट भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जस्ट बाय गेटिंग इन प्रीवियस स्लाइड yes we have get the mathematical equation just that is related to showing effect of heat, that is H is equal to I square RT actually, and H show the relation to the P,
तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें एक रिजम्बलेंस, एक कंफ्यूजन जैसा लगता है, जैसे कि अभी वही कंफ्यूजन यहाँ पे हमें उसको सॉल्व करने के लिए अभी हमें ब्रेन पावर यूज करना है बेटा। तो एक्चुअली अपनी बुक में थिंक अबाउट इट ऐसा यहाँ पे दिया है, और उसमें हमें यहाँ पे जैसे सोचने के लिए यहाँ थोड़ा सा मजबूर किया है। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे हमें क्या बताया कि जैसे हाउ हाउ कैन यू राइट द मैकेनिकल पावर in a manner similar to the electrical power। देखिए बेटा मैकेनिकल पावर yes is a similar manner to the electrical power। क्या इसका रिलेशन हमें दिखाई देता है? तो देखिए बेटा, तो एक्चुअली जैसे हमने देखा बेटा पावर को लेकर, एनर्जी को लेकर, पावर और एनर्जी दे आर द क्लोजली रिलेटेड, यस दे आर द सेम सिनोम। Energy and power are said to be closely to with each other, but they do not have the same type of physical quantity, because देखिए बेटा mechanical power yes is a different physical quantity and another is the जैसे कि यहाँ पे electrical power is a different physical quantity, they are a डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। बट देखिए बेटा पावर जैसे कि यहाँ पे हम मैकेनिकल पावर बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर दे आर द क्लोजली रिलेटेड। एक्चुअली यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड एक टर्म्स हम यहाँ पे लर्न किए। तो देखिए बेटा इसको लेकर जैसे हमें उनकी यूनिट को जैसे कंसिडराइज किया था, तो यहाँ पे मैकेनिकल पावर का हमें यहाँ पे यूनिट क्या मिला था, जैसे कि वैट। ठीक है, अभी इस यूनिट को लेकर हम जैसे सोचते हैं तो देखिए बेटा हमें सिमिलैरिटी मिलती है। जैसे कि देखिए बेटा यही सिमिलैरिटी को लेकर यहाँ पे हमने रिलेशन जैसे कि एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी को लेकर हमने 9th में एक इक्वेशन लर्न किया था, शोइंग रिलेशन ऑफ 1 जूल इज इक्वल टू द 10⁻⁷ अर्ग, है ना बेटा। 1 जूल जैसे यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी, एक्चुअली यहाँ पे जैसे उनके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट को लेकर, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट को लेकर देखिए बेटा ध्यान दीजिए, हमने रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड आर्ग को लेकर, देखिए जूल एसआई में हमें उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और जो अर्ग होता है ये सीजीएस में आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिजम्बलिंग जो रिलेशन था ये रिप्रेजेंट करते हुए एक हमने छोटा सा इक्वेशन लर्न किया था 9th में, वही इक्वेशन हम यहाँ पे याद करते हैं। जैसे कि वी नो दैट 1 न्यूटन, देखिए बेटा 1 न्यूटन, जैसे हम यहाँ पे जैसे वो फोर्स को लेकर जैसे हम यहाँ पे वेट को भी कंसिडराइज कर लेते हैं, जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। चलिए अब ये जो डाइन मिलता है, तो डाइन इज अ यूनिट ऑफ क्या बेटा ये जैसे कि यहाँ पे देखिए सीजीएस यूनिट आता है, और न्यूटन ये क्या बेटा एमकेएस यूनिट है, फोर्स के लिए या वेट के लिए। ठीक है, न्यूटन एसआई को एसआई यूनिट कंसिडराइज किया जाता है, वही 1 न्यूटन जैसे देखिए एसआई में जैसे सीजीएस में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें कितना मिलता है बेटा 10⁵ डाइन मिलेगा, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमें याद है, मालूम है, तो इसी को लेकर देखिए वर्क इज इक्वल टू देखिए रिलेशन कैसे बनता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज नथिंग बट 1 जूल। ठीक है, जूल से हम उसका यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 जूल इज इक्वल टू फोर्स इज 1 न्यूटन। ठीक है, देखिए एसआई में चल रहा है, वर्क का एसआई यूनिट है 1 जूल, और वर्क का देखिए बेटा, ठीक है, जैसे फोर्स जैसे कि यहाँ पे 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर जैसे एसआई यूनिट देखिए बेटा ये ऊपर जो टर्म हमें दिखाई देते हैं वो पूरे कोने बेटा जैसे कि एसआई यूनिट है ये वाले टर्म्स। ठीक है, जैसे 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर ऐसा यूनिट में मिलते हैं। अभी देखिए बेटा अभी सीजीएस में जैसे यहाँ पे अभी 1 जूल इज इक्वल टू यहाँ पे 10⁵ डाइन सीजीएस में आ रहा है यहाँ पे, इंटू द 10⁻² सेंटीमीटर देखिए सीजीएस में आता है। तो एक्चुअली अभी इसको हम जैसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलता है बेटा, जैसे 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा 1 जूल इज इक्वल टू
10⁻⁷ अर्ग। क्या मिलता है बेटा? 10⁻⁷ अर्ग। तो इस तरह से देखिए बेटा हमें यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे केवल हमने हिंट के तौर पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। एक्चुअली यहाँ पे हमें जैसे कि पावर और एनर्जी इस दे आर द सेम, सिमिलर टू विथ ईच अदर, बट फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफर। देखिए बेटा फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिफर है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे रिजेंबलिंग लगते हैं हमें, यहाँ पे जैसे रिलेशन यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो देखिए बेटा अगेन वी हैव कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे कोई डाउट है तो देखिए बेटा हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बेटा हीटिंग इफेक्ट, एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट के लिए हमें यहाँ पे देखिए बेटा जैसे अलॉय मटेरियल यहाँ पे लेना है, अलॉय मेटल, अलॉय जैसे अलॉय यानी कि सम्मिश्र। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा हमें रेजिस्टर्स लेने होते हैं, जैसे वो सम्मिश्र से बने वाले होते हैं, अलॉय से बने वाले होते हैं, मिश्र धातु से बने वाले होते हैं। ठीक है, एंड जो वो मेटल्स होते हैं जैसे नाइक्रोम है, टंगस्टन है। ठीक है बेटा, तो इस तरह के मेटल हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो व्हेन द रेजिस्टर इज कनेक्टेड, रेजिस्टर्स देखिए बेटा वो हमें यहाँ पे हीट इफेक्ट्स देते हैं, रेजिस्टर्स हीट इफेक्ट देते हैं। यस, अभी कभी भी हम रेजिस्टर्स क्या करते हैं बेटा सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा बेटा, वी हैव प्रोड्यूस द हीट देयर, वी हैव प्रोड्यूस द हीट। यस ओके, एंड ये जो हीट यहाँ पे बनती है, यस ये हीट क्यों बनती है बेटा, क्योंकि रेजिस्टर्स जो होते हैं उनमें जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, हमने रो से रिप्रेजेंट की थी रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी अलग होती है। ठीक है बेटा, जैसे कि वो अलॉय के ऊपर निर्भर होती है बेटा, एंड सच लाइक दैट। तो रेजिस्टर्स हम जैसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो यस वी हैव प्रोड्यूस द हीट देयर, वी हैव गेट द हीट देयर, तो वहाँ पे हीट बनती है। ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट कॉइल, पासिंग थ्रू दैट कॉइल, रेजिस्टर्स जैसे कॉइल होता है बेटा। एक्चुअली ये जो हीट हमें इफेक्ट बनते हैं, तो देखिए बेटा हमने जूल्स लॉ को लेकर जो इक्वेशन मिला था, रिमेंबर याद रखना है बेटा, H इज इक्वल टू I² RT। तो इक्वेशन हमें याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए बेटा ऐसे कुछ हमें इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसमें हमें रेजिस्टर्स होते हैं। जैसे देखिए बेटा मैंने आई हैव रिप्रेजेंट हियर सम पिक्चर्स। यस, दीज आर द वन हैव अ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट we have used in our day-to-day life. Yes, and we have completion of the heat necessity, that is the heat effect. चलिए बेटा ये जो हीट इफेक्ट होते हैं हम अपनी लाइफ में जो अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है हीट को लेकर, ये हम क्या करते हैं बेटा उसे पूरा कर लेते हैं इस डिवाइस को यूज करते हुए, इस इलेक्ट्रिक गैजेट्स को यूज करते हुए। ठीक है, जैसे कि देखिए बेटा वी हैव यूज इन आवर डे टू डे लाइफ रेगुलरली यूज द वाटर बॉयलर, क्योंकि हमें नहाने के लिए जो गर्म पानी लगता है, देखिए बेटा इसको गर्म करना है ना, तो यहाँ पे रेजिस्टर्स यूज किए जाते हैं, दैट इज अ वाटर बॉयलर। दिस इज वन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज शोइंग द हीट इफेक्ट, ये हीट इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। चलिए दूसरा यहाँ पे कॉइल सोलेनाइड टाइप है ना बेटा, ये भी यहाँ पे हीट इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर देन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो लाइट तो देता ही है लेकिन यहाँ पे हीट ही प्रोड्यूस करता है, हीट इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। इसके बाद देखिए कॉइल ऑफ कुकर, सेगड़ी बोलते हैं हम इसको। देखिए बेटा जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो देखिए बेटा कॉइल बिकम जैसे कि रेडिश बनती है, लाल बन जाती है, एंड वी हैव गेट द हीट इफेक्ट एंड वी हैव यूज फॉर दिस हीट इज कुकिंग पर्पज, है ना बेटा, एक कुकिंग पर्पज के लिए हम इसे यूज करते हैं। आफ्टर देन देखिए बेटा कॉइल ऑफ हीटर, यस वाटर को हमें यहाँ पे गर्म करना है तो यहाँ पे अभी जैसे हीटर कॉइल यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर देन देखिए बेटा कॉइल्ड कॉइल्स होते हैं, यस दिस आल्सो गिव द हीट इफेक्ट्स हियर। अगेन कॉइल सोलेनॉइड्स, यहाँ पे देखिए बेटा ये भी हमें जैसे मैग्नेटिक जैसे हीट इफेक्ट्स यहाँ पे बनते हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज हीट इफेक्ट जैसे
ज़्यादा पावर सप्लाई होता है, देखिए बेटा यहाँ पे जो फ्यूज वायर होती है गोज टू द बस, दैट्स अ ब्रेक एंड कट द इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट को, इलेक्ट्रिक फ्लो को यहाँ पे क्या करती है बेटा, ब्रेक करती है। ठीक है, चलिए बेटा, ड्यू टू द इस गेटिंग द मोर पावर सप्लाई, जैसे ओके आयरन, electric iron is also good example of the heat effects। ठीक है, again that is a miniature circuit breakers, that is MCB बोलते हैं। ये भी क्या बेटा, हीट इफेक्ट को लेकर ही हम यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो एक्चुअली these are the different examples we have used in our day-to-day life, and these are the giving good examples of heat effect। heat effect देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, give the name of the electric device which give the heat effects। ठीक है, that time we have give the such a example there, such like the water boiler, coil, electric bulb, coil of cooker, coil of heater, coiled coil, electric fuse, MCB, such like that we have give these examples here, very simple। और रेजिस्टर्स किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, रेजिस्टर्स यस they are connected in a circuit for producing the heat, and such heat effect को लेकर देखिए बेटा पिनाकल है, आविष्कार है अपने मानव जाति में। ठीक है बेटा, क्योंकि यस इट्स अ very important, very useful, and it is used for our different needs, yes, which is related to the heat। आपने जो हीट से लेकर जो अलग अलग नीड्स होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके कंप्लीशन के लिए देखिए बेटा ये अपनी लाइफ में एक पिनाकल जैसा है, आविष्कार है। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसे गैडजेट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, जो कि हीट इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। कोई डाउट है इसमें? चलिए बेटा, यस वी हैव कंटिन्यू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Here we have learned some electric devices or the electric gadgets or the electric equipments। ठीक है बेटा, we have used showing relation to the heat effect। इसी को लेकर देखिए बेटा कुछ हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवाइस को लेकर लर्न करेंगे। देखिए बेटा एग्जाम में स्पेशली ये पूछा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक बल्ब की डायग्राम दी जाएगी और उसी को लेकर देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे कि देखिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब यूज किया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब में जैसे हमने यहाँ पे जैसे कि कॉइल यूज की वाली है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉइल, दैट इज अ टंगस्टन। देखिए यहाँ पे कॉइल हम यूज कर रहे हैं, तो देखिए कॉइल जो दिखाई देती है ये वाली कॉइल, तो ये कॉइल क्या बेटा, टंगस्टन से बने वाली होती है, दैट्स ऑलॉय, ये सम्मिश्र बेटा। ठीक है, इट इज वन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, एंड इट्स प्रोड्यूस द हीट when we have passed the electric current through that coil। yes, it's produce the heat, increase the temperature and produce the heat there, and heat ये क्या करती है बेटा, illuminate and जैसे we get the that is a fluorescent light, we get the fluorescent light, that is a working of bulb। तो बल्ब का वर्किंग क्या होता है बेटा, दैट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टिंग टू लाइट एनर्जी, ऑटोमेटिकली इट्स गिव द हीट एनर्जी आल्सो। ये हीट एनर्जी भी हमें यहाँ पे देती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब एक्चुअली हमें यहाँ से डायग्राम दी जाएगी और हमें यहाँ पे उसके नाम्स देने हैं। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे जो कॉइल है दैट्स सोलेनाइड टाइप कॉइल, यस, विच इज मेड बाय द टंगस्टन। ठीक है, ग्लास बल्ब होता है, ग्लास बल्ब दैट्स इंसुलेटर, ग्लास इज वन है गुड इंसुलेटर, कवरिंग प्रोटेक्टिंग लेयर है। ठीक है, अनदर दैट इज अ ग्लास सपोर्ट, अंदर यहाँ पे ग्लास सपोर्ट्स होते हैं कॉइल्स को। ठीक है बेटा, आफ्टर देन नेक्स्ट स्क्रू कैप, जैसे हम होल्डर में प्लग इन कर लेते हैं, जैसे होल्ड, दैट इज अ स्क्रू कैप। आफ्टर देन जो ग्लास बल्ब होता है इसके अंदर यहाँ पे देखिए बेटा जैसे वहां पे वैक्यूम होता है, अभी वैक्यूम में देखिए बेटा यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन गैस या ऑर्गन, जैसे जो इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस जो कि क्या होती है बेटा, जैसे वो नोबल गैसेस होते हैं, जैसे नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, है ना, स्टेबल होते हैं। तो इसी कारण यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जैसे कि
नाइट्रोजन को यूज कर, जैसे हीलियम है, ऑर्गन है, नियॉन है, ऐसे गैस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे डिवाइस है, सिंपली दिखने में तो छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है बेटा, फ्यूज है ना। जैसे फ्यूज क्या करते हैं बेटा, जो हम अपने जो कॉस्टली है ना बेटा, बहुत ही जैसे कि मूल्य वाले जैसे कुछ इक्विपमेंट होते हैं, जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर्स है ना बेटा, एसी होते हैं, तो उनको सुरक्षित रखने में ये फ्यूज क्या करते हैं बेटा, दे प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। ये खुद बस होती है लेकिन जो अपने डिवाइस को क्या करते हैं बेटा, सुरक्षित रखते हैं, है ना बेटा। शॉर्ट सर्किट से भी हम यहाँ पे बचाते हैं, ठीक है ना बेटा। एक्चुअली देखिए बेटा, इस डिवाइस को लेकर देखिए बेटा, छोटे छोटे अलग से ऐसे डिवाइस होते हैं, जैसे डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम अपने डेली लाइफ में जैसे 1 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक फ्यूज क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए। अभी यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल पर्पज होते हैं, अलग से दूसरे पर्पज होते हैं, जैसे उस पर्पज के लिए जैसे अभी अबाउट 10 एम्पियर के फ्यूज हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे फ्यूज। यस, देखिए बेटा ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, फॉर अ डोमेस्टिक पर्पज के लिए। यस, in which range we have used the fuse, that's range is a 1 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए बेटा दूसरा वाला, जैसे कि MCB बोलते हैं हम इसको। तो ये जो MCB होता है, तो MCB एक्चुअली क्या होता है बेटा, तो ये भी जैसे कुछ फेल्युरिटी आती है या कोई पावर जैसे ज़्यादा आता है, ठीक है बेटा, कुछ इक्विपमेंट में कुछ फेल्युरिटी आती है या कुछ जैसे प्रॉब्लमेटिक कुछ क्रिएशन होता है, तो देखिए बेटा ये MCB क्या होती है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होती है। और जैसे स्विच ऑफ होती है तो वो जो पॉइंट्स होता है अपने घर में, है ना बेटा, वो सुरक्षित रह पाता है। एक्चुअली देखिए बेटा ये इम्पोर्टेंस रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। एंड दिस डिवाइसेस, yes, they showing the heat effect of electricity, they showing the heat effect of the electricity। समझ में आ रहा है बेटा, तो इसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। स्पेशली देखिए बेटा, बल्ब को दिखने में तो सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है बेटा, लेकिन एग्जाम में आने वाला है बेटा, आ सकता है, मोर प्रोबेबिलिटी हियर। ठीक है, फ्यूज को लेकर डोमेस्टिक पर्पज के फ्यूज कितने एम्पियर के होते हैं, ये भी हमें यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे MCBs ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। जैसे MCB में क्या होता है बेटा, जैसे जो सर्किट को सडनली जैसे कोई पावर सप्लाई होता है या इंस्ट्रूमेंट में कुछ फेल्युरिटी आती है, तो झट से क्या कर लेते हैं बेटा, स्विच ऑफ कर लेते हैं, मेनी स्विच यहाँ पे ऑफ हो जाता है। तो अपनी सुरक्षितता यानी कि प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंस मायने रखते हैं। ठीक है बेटा, तो एक्चुअली इस पॉइंट को देखिए बेटा, थोड़ा सा ध्यान देकर लर्न करना है, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है बेटा। डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो MSCB के द्वारा हमें जो पावर सप्लाई दिया जाता है, एक्चुअली वो कितना होता है बेटा, 220 वोल्ट। कितना होता है बेटा यहाँ पे, 220 वोल्ट। अभी एक्चुअली वो जो पावर सप्लाई होता है MSCB हमें यहाँ पे 3 केबल्स क्या करती है बेटा, प्रोवाइड करती है एंड कनेक्ट्स टू आवर मीटर। एक्चुअली उनमें फेज होता है, दैट्स वन है वो प्लस चार्ज, है ना, इट इज अ करंट कैरिंग वायर। अनदर न्यूट्रल होता है, दैट्स वाज एज अ नेगेटिव, दैट इज अ सपोर्ट टू द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि कंडक्टिंग वायर जो होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करती है, उसको सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रल होता है। आफ्टर देन थर्ड वन इज द अर्थिंग, जो कि एक्स्ट्रा जो पावर सप्लाई होता है कभी कभी इन सडन केस में, तो सच एक्स्ट्रा पावर जस्ट ओके, इसको क्या करता है बेटा, इट्स रिड्यूस एंड प्रोवाइड और सप्लाई टू द अर्थ। ठीक है, तो MSCB हमें कितनी पावर सप्लाई करती है बेटा, 220 वोल्ट। ठीक है, और वहां पे हमें कितने केबल्स होते हैं, जैसे मिलते हैं, जैसे 3 केबल मिलते हैं, एक होता है फेज, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा यहाँ पे अर्थिंग। ठीक है, जैसे डोमेस्टिक पर्पज में हमें इसे यूटिलाइज कर लेते हैं सिंपली। तो देखिए बेटा बहुत ही इंटरेस्टेड, यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, यस, कुछ लर्न करने के लिए मिल रहा है। और एक्चुअली देखिए बेटा बहुत सारे से पिनाकल जैसे कुछ आविष्कार सीखने के लिए मिलते हैं,
Any interested? तो देखिए बेटा, so we have continue tomorrow. Thank you.